হতে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সম্মেলনের যে প্রতিনিধি, সেই প্রতিনিধির নামের তালিকা আপনারা দেখছেন एजीटी लाइव 24/7। आप देख रहे हैं एजीटी लाइव 24/7। You are watching বৃন্দা AGT দেববর্মা, Live 24/7. রমণী দেববর্মা, ঝর্ণা দাস বৈদ্য, মনিতা চাকমা, স্বপ্না দত্ত, হেপি চক্রবর্তী, মুক্তা দাস, মিতালি ভট্টাচার্য, জেসমিন সুলতানা, দশরানী ত্রিপুরা, বিজিতা নাগ, মোমবাতি রিয়াং, সুনীতি সাহা, খনা দাস, রেহানা বেগম, রঞ্জনা বসাক, কৃষ্ণা মজুমদার, আরতি নন্দী, মিনতি বিশ্বাস, চিনু চৌধুরী, বাসনা দাস, কৃষ্ণা দে এবং কৃষ্ণা রক্ষী। এই 23 জনের সম্পাদক মণ্ডলী নতুন রাজ্য কমিটি গ্রহণ করেছে। আমাদের বিগত রাজ্য কমিটিতে আমাদের 3 জন সিনিয়র কমরেড রমা দাস, কমরেড ছায়া বল, কমরেড রূপা গাঙ্গুলি এই রাজ্য কমিটির প্যাট্রন নির্বাচিত হয়েছেন। তারা এই 3 জনের নাম আমি এখানে রাখলাম। সম্পাদিকা হয়েছেন, সভানেত্রী হয়েছেন কমরেড বৃন্দা দেববর্মা। কমরেড বৃন্দা দেববর্মা, কমরেড বৃন্দা দেববর্মা। সম্পাদিকা কমরেড স্বপ্না দত্ত। সহসভানেত্রী বিজিতা নাথ, রমণী দেববর্মা, ঝর্ণা দাস, দশরানী ত্রিপুরা। সহসম্পাদিকা কমরেড হেপি চক্রবর্তী, জেসমিন সুলতানা, মিতালি ভট্টাচার্য, আরতি নন্দী। আর আমাদের সংগঠনের কেশিয়া কৃষ্ণা দে। সম্মেলন শেষ হলো। এই সম্মেলনে আমরা 85 জনকে নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করেছি এবং এই কমিটির মধ্যে আমরা বিগত সম্মেলনে যে কমিটি করেছিলাম 97 জনকে নিয়ে, কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মতো এবার আমরা 85 জনকে নিয়ে কমিটি করেছি। এই কমিটিতে নতুন মুখ এসছে 19 জন, এসটি 22 জন, এসসি 13 জন, সংখ্যালঘু 4 জন, ওবিসি রয়েছে 11 জন এবং আমাদের রাজ্য যে সম্পাদক মণ্ডলী, এই সম্পাদক মণ্ডলী আমরা 23 জনকে নিয়ে করেছি। এখানে এই সম্মেলন থেকে আমাদের নতুন সভানেত্রী এখানে নির্বাচিত হয়েছেন কমরেড বৃন্দা দেববর্মা। সম্পাদিকা হিসাবে আমাকে পুনর্বার নির্বাচিত করা হয়েছে। আমরা এই সম্মেলনে আমরা যে আলোচনা 2 দিনব্যাপী যে আমাদের আলোচনা হয়েছে, সে প্রতিনিধি আমাদের 30 জন প্রতিনিধি এই সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেছেন। তাতে করে গোটা রাজ্যের মধ্যে মহকুমাগুলির যে রাজনৈতিক অবস্থা, এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে নারীদের কাজ করা খুবই কঠিন। এখানে নারীদের কোনো ঘটনা, নারী নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে থানায় পারমিশন পাওয়া যায় না, বিক্ষোভ মিছিল করা যায় না। এই বিষয়গুলি উঠে এসেছে এবং এখানে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বলেছেন রাজ্যের যে বর্তমান যে পরিস্থিতি, এখানে যেভাবে করে প্রশাসন যেভাবে এই রাজ্যের জনগণের স্বার্থে কোনো কাজ করছে না, ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গোটা রাজ্যের মধ্যেই নারীরা আজকে আন্দোলন করছেন, পানীয় জলের দাবিতে আন্দোলন করছেন।
রাস্তা মেরামতের দাবিতে আন্দোলন করেছেন এবং স্কুলে মাস্টারের দাবিতে ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে অভিভাবকরাও সেখানে আন্দোলন করছেন। এই যখন অবস্থা, সেখানে নারী সংগঠনকে খুব চ্যালেঞ্জ নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে এবং আমাদের এই সমাবেশকে আটকানোর জন্য নানা ধরনের প্রশাসন সেখানে সরকারের নির্দেশ মতো, শাসক দলের নির্দেশ মতো আমাদের সমস্ত পারমিশনের কাগজ যে আমরা পেপার দিয়েছি সমস্ত বাতিল করে দিয়েছেন। লাস্ট মুহূর্তে প্যারাডাইস চমুনিত বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে অনেক হয়রানি হয়েছে আমাদের যারা সাধারণ, গোটা রাজ্য থেকে, পাহাড় থেকে, কাঞ্চনপুর থেকে, ছামনু থেকে, করবুক থেকে, চেলাগাং থেকে, সাব্রুম থেকে, সমস্ত মহকুমা থেকে মহিলারা এসেছিলেন জনসভা। তাদের নানান জায়গা ঘুরতে হচ্ছে, কারণ আমরা পত্রিকাতে যে জায়গা দিয়েছি এই জায়গা আমাদের 2 বার পরিবর্তন করতে হয়েছে। ফলে এই যে অবস্থা, নারীদের, নারী বিরোধী, নারীদের অধিকার দেবার সেখানে কোনো মুরদ নেই, নারীদের দাবিগুলি পূরণের জন্য কোনো আন্তরিক ইচ্ছা নেই এই সরকারটার। তার মধ্যে যাতে নারীরা সেখানে অর্থনৈতিক দাবি, সামাজিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে কোনো ধরনের আন্দোলন করতে না পারে, কথা বলতে না পারে, তার জন্য বিভিন্নভাবে সেখানে পরিকল্পনা করে আটকে দেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আমাদের এই সম্মেলনে ডেলিগেটদের আলোচনা, আমরা সকলে মিলে আমরা এই সম্মেলন থেকে যে বিষয়টা আমরা আগামী দিনে আমরা এই ধরনের প্রশাসনিকের অবরোধ এবং শাসক দলের সমস্ত বাধা বিপত্তিকে মারিয়েই সমস্ত নারীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা রাজ্যের নারীদের যে অধিকার আদায়ের যে দাবি, এই দাবিতে আমরা লড়াই জারি রাখবো। এটাই হচ্ছে আমাদের সম্মেলনের আগামী দিন। कल और आज यहाँ पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की जो त्रिपुरा स्टेट है उस ब्रांच की यहाँ पर राज्य सम्मेलन हुआ। सब के सब 24 डिवीज़न, सब डिवीज़न से, सभी जिलों से, यहाँ से 400 के 500 प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे। यहाँ 2 दिन में त्रिपुरा के अंदर जो हालात है बीजेपी की सरकार आने के बाद, और दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है उसके जो पूरे परिणाम पड़ रहे हैं उसके पॉलिसी का, उसके ऊपर बहुत गंभीरता से बात हुई। यहाँ पर बेरोज़गारी का जो सवाल है वो बहुत ही अहम सवाल हो गया है, जिसकी वजह से त्रिपुरा से माइग्रेशन भी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गया है। पूरी की पूरी फैमिलीज़ यहाँ से अभी जा रही है और स्पेशली यूथ बहुत बड़े पैमाने से त्रिपुरा छोड़ के रोज़गार ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। मनरेगा का कोई काम नहीं मिल रहा है। पहले मनरेगा का काम मिल रहा था, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन काम मिलता है, वो भी उसका कोई गारंटी नहीं, मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। तो ऐसे हालात में लोगों को ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया है त्रिपुरा के अंदर। दूसरी जगह पे ऑल इंडिया लेवल पे भी मनरेगा का बजट सरकार ने कट कर दिया है, तो कहीं पे भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। फिर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी लगभग ख़त्म कर दिया है। मोदी सरकार ने उसके ऊपर पिछले बजट में कोई भी एलोकेशन, 0 एलोकेशन राशंस के लिए किया है। तो इसका भी आप देखते हैं तो इसका असर औरतों की पूरे वीकनेस के ऊपर, जो भी नेशनल हेल्थ सर्वेज आते हैं तो औरतों का अनीमिया बढ़ गया है, औरतों का जो भी बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ गई है। ये सभी सरकारी सर्वे में ही आ रहा है। तीसरी जगह पे जो हिंसा का बात है, आए दिन हिंसा का यहाँ पर त्रिपुरा में तो बहुत ही बढ़ गया है। और त्रिपुरा में एक बात ऐसा है कि जो ये सरकार बनी है यहाँ पर, वो मतलब गुंडागर्दी और हिंसा के आधार पर अपनी सत्ता को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हमारी महिलाएं हर जगह से बोल रही थी कि उनको तो जनवादी मूल्यों में तो कोई विश्वास ही नहीं है। बीजेपी और आरएसएस जनवाद में विश्वास ही नहीं रखते हैं, इसलिए अगर कोई मीटिंग में जा रहा है, कोई किसी के घर पे जा रहा है, और अगर वो वामपंथी हो या फिर वो अलग अलग विचार के हो, तो उनको ये विचार कतई वो मंजूरी नहीं देते हैं। मारपीट करते, घर तोड़ देते हैं
और यहाँ तक कि उनकी जान भी ले लेते हैं। तो ये जो पूरी लोकशाही विरोधी, जनवादी विरोधी और धर्मनिरपेक्षता विरोधी जो ये सरकार है, उससे माहौल, सामाजिक माहौल भी बहुत ख़राब हो गया है। हिंदू मुसलमान, आदिवासी बगैर आदिवासी, ये जो खेला वो खेल रहे हैं, उससे पूरे देश के अंदर हालात बहुत बिगड़ गए हैं और त्रिपुरा में तो और भी बिगड़ गया है। हर जगह पर यही होता है। अभी हमारा यहाँ पे पब्लिक मीटिंग था पहले दिन, उस पब्लिक मीटिंग का उन्होंने 13 नवंबर को अर्जी किया था, उन्होंने परमिशन दी थी। लास्ट मिनट बीजेपी के दबाव में आकर बीजेपी वालों ने उसी दिन 13 तारीख को ही, उसी ही दिन उन्होंने लास्ट मिनट एक प्रोग्राम तय किया और हमारा परमिशन उन्होंने कैंसिल किया। ऐसा तो कहीं नहीं होता है, पूरे देश के अंदर ऐसा कहीं नहीं होता है कि दी हुई परमिशन किसी भी सरकार के दबाव में आकर पुलिस कैंसिल कर देती है। पुलिस तो इस देश के संविधान के आधार पर चलना चाहिए या किसी सरकार की मर्जी से चलना चाहिए। तो सब जगह पर बीजेपी के लोग आज महिला विरोधी कानून बना रहे हैं, महिला विरोधी बयान दे रहे हैं। उनके एमएलएज बहुत गंदा बयान देते हैं सब जगह पर, और जो औरतों के साथ बलात्कार करता है और यौन शोषण करता है उसको समर्थन देती है बीजेपी और आरएसएस। कई नेता उनके, कई एमएलए उनके इसके अंदर अक्यूज्ड है, उसके अंदर गुनहगार है। तो इसलिए महिला समिति ने तय किया है त्रिपुरा के अंदर इसके ऊपर आगे के दिनों में हम आंदोलन बनाएंगे ज़्यादा मजबूती से, क्योंकि आदिवासियों के पूरे कानून उन्होंने बदल दिए हैं। सब तरह के अंबानी और अदानी को इस देश बेचने के लिए और अमेरिका की लाचारी करने के लिए आज मोदी सरकार अपनी हुकूमत चला रही है। ये हमारे सब के लिए एक बहुत शर्म की बात है, भारत के लिए बहुत शर्म की बात है कि ऐसी सरकार गद्दी पे बैठी है। तो इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे आगे के दिनों में। सम्मेलने सम्मेलने आंताबुं नूतन कताल अब सभानेत्री सिनी आंगानी महकुमा जम्पुई टाकार जला बेलायनो सन्त्रास कबलित जागानि बरक आं आबरि बागैनो आनो तिनि जे पार्टी सिनि जे गण संगठन आनो हामजागै जे डाइरेक्टर खा आबनो आं आगामी दिनाव आनि ताई जे तंसाक जरतै आं जालुगै थांनानै आं चेष्टा खायानै ताई सिनि जे ट्राइबेल एरिया और बेसिरभाग जों ताबुक साइमानु जे त्रिपुरा मथा ताई बीजेपी आईपीएफटी बेलायनो सन्त्रास खाय दंखा आबनि बागै जों सिनि ट्राइबेल एरियाव सिनि जे नारी समिति जे खालाय दंमानि आबरक जों हुजागै खालायमा दंग आबनि बागै जों ताबुक दिनि और आं जे प्रेसिडेंट हिसाबै दायित्व माखा ताबुक सिनि जारा एडीसी एरियाव थांगैनाय आं अबनो पुसुगैरिनाय आगामी दिनाव तेबो बारिनो नामागा आनि चेष्टा दंनाय असुजरा साइना आनि ककबाय। ये न्यूज़ कंटेंट देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए AGT Live 24/7। Thanks for watching AGT Live 24/7.